Hello student, how are you? I hope you all are very fine. Today I am going to teach you SS chapter 2, what is around us. Now students, you all know we live on earth. हम अर्थ पे रहते हैं, okay? So we will see in this chapter about the earth, what is there on the earth, okay? अर्थ पे क्या क्या है वो सब हम देखेंगे. Let's see. Dhanvir was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Dhanvir asked his mother, "What is land made up of?" Mother replied, "Do you see the sun every day? The sun too has a family which is known as the solar family." Now students see, in this line we will see conversation between Dhanvir and his mother. Okay, and they both are walking in the garden and Dhanvir is asking to his mother कि मम्मा मम्मा व्हाट इज लैंड मेड अप, हमारी जो लैंड है वो किससे बनी हुई है. देन हिज मदर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द लैंड एंड शी टोल्ड, डू यू सी द सन एवरी डे. ओके, क्या आपने हर रोज सन को देखा है. देन धनवीर टोल्ड कि यस, सो वी हैव फैमिली, सो लाइक द सन हैज ऑल्सो फैमिली. सन की भी एक फैमिली है and its name is solar family. We can say solar system. Okay, so students, our earth is one of the members of the solar family. तो हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का, सोलर फैमिली का एक मेंबर है. एंड देर आर 9 प्लैनेट्स. ओके, कितने प्लैनेट्स है टोटल? 9 प्लैनेट्स है. उसमें से एक है अर्थ. The most important point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. Now students see, all the members of the solar system, okay, solar system के जितने भी members हैं उनकी अपनी अपनी एक suitable temperature, water and their lives being. okay, उनकी जो lives है कैसे रहते हैं वो सब उनका अपना अपना खुद का है. एंड वी ऑल आर लिविंग ऑन द अर्थ, हम भी अर्थ में रहते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट, जनरली इट इज बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज बीन डिटेक्ट फ्रॉम द सन आफ्टर द collision is earth. At the time of its origin, it was in the form of a fireball. Now students see, we have seen the sun. sun हमने देखा है. ओके, एंड हमें सबको पता है कि सन से हमें क्या मिलते हैं? लाइट. एंड इट इज़ द फायरबॉल, वो भी फायरबॉल है. और उससे पहले जब हमारा अर्थ था एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन, ओके, तो वो भी एक फायरबॉल ही था, आग का गोला था. This fireball started to cool down slowly. Many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. During this process, the elements which got transferred into solid are known as the lithosphere. Now students see, as I told to you, our earth is like a फायरबॉल. ओके, इन ओरिजिन फॉर्म में वो फायरबॉल था. एंड देन दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन, वो एक ठंडा धीरे 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 ठंडा हो गया. ओके, एंड उसके बाद मैनी एलिमेंट्स मीन्स बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो अर्थ में मिल के मिक्सअप हो गए और उसके लिक्विड फॉर्म एंड अदर सॉलिड फॉर्म भी अंदर आपको पाए जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ओके, द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड आर
known as the lithosphere. And ये जो प्रोसेस है सारी ओके ट्रांसफर की, इट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. क्या नेम है उसका? लिथोस्फीयर. Now student, the elements which transform into gases came to be known as the atmosphere. Okay, और जो gases था it is called the atmosphere. And above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. And now see students, water, air, okay, these forms are called the biosphere. In this way, the four spheres came into existence on earth. Now students see, as I told to you before, कि in origin form our earth is a fireball. Okay, fireball थी, and then there are different forms. Different forms are transferred. Okay, and they are the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Now students see, in this picture also you can see very well okay, which is the atmosphere, okay, which living things are there, okay, what are there, everything you can see in this picture. Atmosphere, this is the biosphere, hydrosphere and lithosphere. So they are the four spheres on the earth. ये अर्थ के फोर फियर्स है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द लिथोस्फीयर. किसके बारे में हम देखेंगे? लिथोस्फीयर के बारे में. ओके स्टूडेंट, नाउ सी, द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर. नाउ स्टूडेंट, हम जो स्फीयर पे रहते हैं ओके, वो स्फीयर का नेम क्या है? लिथोस्फीयर मीन्स लैंड. ओके, जो लैंड पे हम रहते हैं, घर बनाते हैं, ओके, वो सब कुछ. नाउ लिथो मीन्स रॉक एंड स्पीयर मीन्स लेयर. नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर लिथो मीनिंग इज रॉक यानी कि पत्थर, ओके, जो स्टोन होते हैं वो. एंड स्पीयर मीन्स लेयर, जो हमारी लैंड होती है उसके ऊपर का लेयर. The upper layer of the earth is made of soil and solid materials like rock. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. This layer is almost 64 km to 100 km thick, and the thickness of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. Similarly, their interior and exterior do not have identical physical features. It is mostly made up of substances like soil and rock. Now students see, the solid part on which we live is known as the lithosphere. This layer occupies about the 29% surface of the earth and is almost 64 किलोमीटर to 100 किलोमीटर thick. ओके, हम जो लैंड पे रहते हैं वो लैंड का जो लेयर है, सरफेस है, ओके, वो 64 किलोमीटर to 100 किलोमीटर तक कितना है? थिक है. एंड लैंड्स फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूस, plains, valleys, etc. are seen on the lithosphere. So students, as I told to you कि लैंड्स फॉर्म, ओके, हम जो लिथोस्फीयर में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, वो सब में क्या क्या काउंट होता है? सो दैट इज़ द माउंटेन्स, प्लेट्यूस, प्लेन्स, वैलीज, ओके, ये सब कुछ हमें कहाँ दिखाई देता है? लिथोस्फीयर में दिखाई देता है. द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव towards the center of the earth. The molten rocks in the interior of the earth are known as magma. Now students see here, as we move towards the center of the earth, okay, अर्थ के सेंटर में हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उसका जो टेम्परेचर है
वो कैसा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स बढ़ता जा रहा है. एंड रॉक्स, ओके, रॉक्स विच आर इन molten स्टेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मग्मा. उसका जो रॉक है इट इज कॉल्ड द मग्मा, उसका नेम क्या है, मग्मा है. नाउ स्टूडेंट्स सी, देर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके, अर्थ में बहुत सारे गैसेस भी है. एंड विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट. वो किससे राइज अप होता है, प्रेशर और हीट, गर्मी से और प्रेशर से वो राइज अप होते हैं, मीन्स बढ़ते हैं. बट द प्रेशर ऑफ द रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रांग. दस बैलेंस बिटवीन द two is maintained, so the crust of the earth does not break. When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and a volcano erupts. Okay, now students see here, as I told to you, many gases present in the interior rise up due to the pressure and heat. ओके, मैनी जो गैसेस होते हैं वो हीट और प्रेशर की वजह से राइज अप होते हैं, मीन्स बढ़ते हैं. बट द प्रेशर ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वली स्ट्रांग. पर जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, एकदम स्ट्रांग होता है, मीन्स रॉक का जो लेयर होता है दैट इज वेरी स्ट्रांग. दस अ बैलेंस इज मेंटेन एंड द अर्थ क्रस्ट डज नॉट ब्रेक. However, if this balance is disturbed, अगर वो बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाए, ओके, तो उसमें से क्या आएगा बाहर, इट ब्रेक्स एंड अ वॉल्केनो क्रप्स. और उससे क्या होगा, वॉल्केनो, ज्वालामुखी. ओके, जैसे कि हम देखते हैं कि समर सीजन में बहुत ही गर्मी होती है, लावा लैंड के अंदर बहुत ही लावा होता है और उसको हीट और प्रेशर किया जाए तो उसमें से बाहर निकलता है, वॉल्केनो फटता है लाइक अ आग का गोला. मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस. ओके, यहाँ ये जो धनवीर है, धनवीर इज आस्किंग टू हिज मम्मी, उसकी मम्मी को पूछता है कि लिथोस्फीयर है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे हमें यूज करता है. सो वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर. ओके, सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर लिथोस्फीयर नहीं है तो हम हमारा घर कहाँ बांधेंगे. ओके, पानी के अंदर तो हम घर नहीं बना सकते. ओके, सो इट इज़ वेरी यूजफुल लिथोस्फीयर. ओके, लिथोस्फीयर है बहुत ही यूजफुल है हमारा घर इंस्ट्रक्ट करने के लिए, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए. विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट. ओके, अनदर क्वेश्चन भी लग रहा है कि अगर लिथोस्फीयर ही नहीं है तो हमें पानी पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा. ओके, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, वो कुछ भी नहीं होगा. और ये सब कुछ है वो कहाँ पे होता है, लिथोस्फीयर में होता है. नाउ स्टूडेंट्स, draw a picture depicting all the details you observe on lithosphere based on our कन्वर्सेशन. ओके, हमारा जो ये कन्वर्सेशन हुआ उसने आपने देखा होगा कि वो कैसे यूज़फुल है. ओके, कितने परसेंटेज उसका लेयर है. ओके, वो सब कुछ आप पिक्चर ड्रॉ करके ट्राई कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, we have seen about the lithosphere. Okay, so you have to read this chapter at your home. आपको ये घर पे चैप्टर रीड करना है. If you have any query then you can ask to me, and in next class we will learn about the hydrosphere. किसके बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर. So student, goodbye, thank you very much.